नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर स्पोर्टिंग क्लब के 90 साल पूर्ति के अवसर पर वर्ष व्यापी आयोजित की जा रही है कई कार्यक्रम। पत्रकार सम्मेलन के जरिए दिया विस्तारित जानकारी। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के बर्थल चाय बागान क्षेत्र के जगन्नाथबाड़ी इलाके में आयोजित हो रही है 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ व भागवत पाठ कार्यक्रम। 12 जून से 14 जून तक चलेगी धार्मिक कार्यक्रम। तापांग मंडल के अंतर्गत चेनकुड़ी गांव पंचायत के अधीन पश्चिम कचुदरम से श्री भुवनेश्वर साधु ठाकुर मंदिर प्रांगण में विधायक किशन नाथ को दिया गया संबर्धना। उन्नयन व प्रगति की धारा बरकरार रखे जाने का किया गया अपील। सिलचर के बंग भवन में शुरू हुआ साउथ असम फिल्म फेस्टिवल। संबर्धना सभा तथा कई और कार्यक्रम के जरिए लोगों में देखी गई हलचल। सिलचर के कछार जिला बार एसोसिएशन के कार्यालय में आयोजित हुआ चुनाव कार्यक्रम। विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की देखी गई चहल पहल। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रूप से हुआ संपन्न। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर स्पोर्टिंग क्लब के 90 साल पूर्ति के अवसर पर वर्ष व्यापी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए संगठन के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में विस्तारित तथ्य उजागर किया। उनका कहना था कि सन 1936 में स्थापित सिलचर स्पोर्टिंग क्लब के इतिहास अब भी उनके पास नहीं है। कई दस्तावेज भी उनके पास अब तक संभल कर नहीं रखा जा सका है। लेकिन सन 1936 से सिलचर स्पोर्टिंग क्लब सेवा करता रहा है और बाराघाटी से उत्तर पूर्वांचल में यह दूसरा क्लब है जो कि 90 साल के कगार पर पहुंचा है। हालांकि इंडिया क्लब 125 साल पूर्ति मना रही है, तो इसी दौरान दीननाथ नवकिशोर बालिका विद्यालय भी 100 साल पूर्ति मना रहा है। इसी के समकक्ष के तौर पर सिलचर स्पोर्टिंग क्लब भी अपने गतिविधि को सामने रखते हुए पिछले 90 सालों से एक अहम किरदार क्रीड़ा के क्षेत्र में निभाया है। पत्रकार सम्मेलन के जरिए आयोजित कार्यक्रम के बारे में विस्तारित जानकारी दिया गया। কেন বলছি এটা বললে পরে মানে সত্যের অপলাপ হবে। আমরা এক্স্যাক্টলি জানি না এটা কবে, তবে বর্ষটা যেহেতু বানিয়ে নিয়ে আমি একটা বানিয়েছিলাম এখানে আমার কাছে এইটা শিলচর স্পোর্টিং অনেক ঝড় ঝঞ্ঝা পেরিয়ে এখন 90 বছরে এসে পৌঁছেছে। আমরা এই বরাক উপত্যকায় আমরা নিজেদেরকে বলি আমরা দ্বিতীয় প্রাচীনতম ক্লাব, ইন্ডিয়া বড় মাইলস্টোন। আমি যেটা আপনাদের বলতে চাইছি এরকম একটা মাইলস্টোন খুব হাতে গোনা কিছু ক্লাবের ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় আমার জানা মতে, বিশেষ করে আসাম বা আমাদের দক্ষিণ আসামের অঞ্চলে। আমি খুব গর্বিত আবারও বলছি যে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা আমরা গত শতাব্দীর থেকে আমরা যখন এস্টাবলিশ হয়েছিল, আপনারা জানেন আমাদের এই ক্লাবের নির্মাতা ছিলেন শ্রী যতীন্দ্র সেন নামে এক ভদ্রলোক এবং ওনার সঙ্গে ছিলেন মাখন সেন। হয়নি, যার জন্য আমরা ওই জাস্ট সিনিয়র কারো কাছ থেকে, যেমন আপনারা জানেন আমাদের এখানে যে বসে আছেন শিলচরের প্রাক্তন ডিএসএ সভাপতি এবং আমাদের সহসভাপতি, উনি এই ব্যাপারে আমাদেরকে অনেক সাহায্য করেছেন। অ্যাকচুয়ালি উনি ওনার মেমোরি ঠাকুর ভালোই দিয়েছেন এবং উনি ব্যাপারে খুব ভালো খবরও রাখেন। যাই হোক, তার সূত্র ধরেই আমরা কিছু শিলচরের আরেকটা সংস্থা জ্ঞানের জুবিলি করেছিল, সেটা সংস্থা নয়, সেটা একটা শিক্ষা আয়তন, দীননাথ নবকিশোর বালিকা বিদ্যালয়। আজকের থেকে বছর 20 আগে হবে এরকম করেছিল। আমি এক সময় ওটা টিচার ছিলাম, কাজে আই ওয়াজ টেকেন পার্টিসিপেশন দেয়ার 90 বছর যাবত। তো যাই হোক, এটা কথা নয়। এই যে উৎসবটা আমরা এখন করছি, এটাতে আবহাওয়া আমাদের কাছে একটা
মানে প্রতিকূলতার সৃষ্টি করেছে, আপনারা সবাই জানেন। তা সত্ত্বেও আমরা যে করছি, কারণ এছাড়া আমাদের কোনো সুযোগ ছিল না। করবো as soon as আবহাওয়া ঠিক হতে থাকবে, আমরা এর মধ্যেই আরো কিছু মানে কম্পিটিশন করব, সেগুলো আমরা মোটামুটি ঠিক করে রেখেছি, যদিও কাগজে কলমে দিইনি। তাও সপ্তাহে জানিয়ে রাখছি, ক্যারেম আছে, চেস আছে, আপনাদের আর্ট রয়েছে, মিউজিক রয়েছে, এগুলো আমরা করে যাব। আর উইন্টার সিজনে গেলে তো ক্রিকেটে আমরা মোটামুটি আসবোই আসবো। এর মধ্যে এই যে প্রোগ্রামটা করছি, এই প্রোগ্রামটা যেহেতু আউটডোরে ওই বেশি করা যাবে না, আমরা ফুটবলটাকে নিচ্ছি, ইনডোরে ছোটখাটো দুই একটা রেখেছি আমরা। আপনারা জানেন 14ই জানুয়ারি বোধহয় বিশ্ব রক্তদান দিবস। তো আমরা ঠিক করেছি যে ওই সময়ে আমাদের এই অঞ্চলের দুইজন ব্যক্তিত্ব যারা সবচেয়ে বেশিবার রক্তদান করেছেন, হ্যাঁ, তাদেরকে একটু যদি আমরা সম্মাননা জানাতে পারি, আমরা খুশি হব। এছাড়া আপনাদেরকে আর একটা খবর বলছি, আমরা শিলচর স্পোর্টিং ক্লাব এই ইসের সঙ্গে আমরা একটা ক্রিকেট একাডেমি শুভারম্ভ করতে যাচ্ছি। যদিও আমরা এটা আরম্ভ করতে যাচ্ছি এটার সঙ্গেই, তা সত্ত্বেও একটা কথা বলছি যে ক্রিকেট একাডেমিটা আমরা এই মুহূর্তে চালু করতে পারছি না, কারণ নানা রকমের টেকনিক্যাল অসুবিধা আছে। তা সত্ত্বেও যেহেতু এই সুযোগে এসছি আমরা এটা করে নেব। এটা হলো একটা অনুষ্ঠান থাকছে, কবে থেকে শুরু হচ্ছে এবং কি কি ইভেন্টস আপনারা রাখছেন? নমস্কার, আমি সিদ্ধার্থ খান, শিলচর স্পোর্টিং ক্লাবের সচিব। আমরা খুবই গর্বের সাথে আমরা সকলকে জানাচ্ছি যে আগামী 14 তারিখ জুন মাস 2026 আমরা আমাদের 90 বছর পূর্তি উদযাপন করব। আমাদের 90 বছর পূর্তিতে আমরা বৎসরব্যাপী বিভিন্ন কার্যসূচি রেখেছি। আমাদের শুভারম্ভর অনুষ্ঠান যেটা রয়েছে 14 তারিখে রোববার, সেটার মধ্যে আমরা 4টে মূল আকর্ষণ যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে 4টে ফুটবল টিম, ওমেন্স ফুটবল টিম, বরাক উপত্যকারী, আরকাটিপুর লিটল গার্লস ক্লাব, লালবাগ মহিলা টিম বরখলা থেকে, হাইলাকান্দি মহিলা ফুটবল দল, কালাইনের একটা টিম। এই 4টে টিম এসে আমাদের এই শিলচর স্পোর্টিং ক্লাবের গ্রাউন্ডে ওনারা একটা ম্যাচ হবে। 3টে ম্যাচের মাধ্যমে চ্যাম্পিয়ন, রানার্স আপ এবং 2 আদার টিমস আমরা পাবো। 4টে টিমের মধ্যে আমরা চ্যাম্পিয়নকে আমরা একটা ভালো পুরস্কার দিয়ে আমরা পুরস্কৃত করব। তার সাথেও আমাদের এই দিন কার্যসূচির মধ্যে আমরা আরম্ভ করব আমাদের টর্চ মার্চ দিয়ে, মানে মশাল দৌড় দিয়ে। তাছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে। আমরা শিলচর স্পোর্টিং ক্লাবে বিগত দিনে ফুটবল খেলেছে এরকম 4জন প্লেয়ারকে আমরা আমাদের তরফ থেকে একটা ছোটোখাটো আমরা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করব। তাছাড়াও আপনারা জানবেন যে ওয়ার্ল্ড ব্লাড ডোনার্স ডে হিসেবে 14 জুন আমরা প্রত্যেকে উদযাপন করি। সেটাকে মাথায় রেখে শিলচরের 2জন হাইয়েস্ট ব্লাড ডোনার, যারা একজন রাজেন্দ্র জৈন জি, উনি 115 বার ব্লাড ডোনেট করেছেন, এবং বিভাস রায় উনি 89 টাইমস ব্লাড ডোনেট করেছেন, বরাক উপত্যকারী লোক। তাদেরকে আমরা এনে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করব। তাছাড়াও আমাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আমরা চেষ্টা করব তাদেরকে উপস্থিত করার আমাদের এই অনুষ্ঠানে। তার মধ্যে রয়েছেন মিশনের বৈকুণ্ঠানন্দজি মহারাজ, তার সাথে রয়েছেন আমাদের আসামের মন্ত্রী কৌশিক রায়। আমরা নিমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের কনাথপুর কায়স্থ মহাশয়কে, নিমন্ত্রণ জানিয়েছি দীপায়ন চক্রবর্তী মহাশয়কে, নিমন্ত্রণ জানিয়েছি আমরা পরিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয়কে। তাছাড়াও আরও নানান ক্রীড়া জগতের প্রত্যেককে আমরা নিমন্ত্রণ করেছি। আমাদের অনুষ্ঠানের কার্যসূচির মধ্যে আরেকটা আকর্ষণ রয়েছে। আমরা এই নববর্ষর উদযাপনে আমাদের শিলচর স্পোর্টিং ক্লাবের ক্রিকেট একাডেমি, স্পোর্টিং ক্লাবের সচিব সিদ্ধার্থ খান, আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের সভাপতি ডক্টর অনুপ কুমার রায় মহাশয়। আমরা
বরাক উপত্যকার ক্রীড়া জগতের প্রত্যেককে এবং সর্বসাধারণ প্রত্যেককে আমরা করজোড়ে আমন্ত্রণ জানাই। এই 14 তারিখ আমরা যে অনুষ্ঠানের আরম্ভ করছি সেটা আপনারা সামিল হন। এই ক্লাব আমাদের, আপনাদের এই ক্লাব বরাক উপত্যকার গর্ব। আপনারা আসুন, আমাদের সাথে থাকুন, আপনারা এই অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলুন। ধন্যবাদ। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के बौर्थल चाय बागान में 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ तथा भगवत पाठ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 12 जून, 13 जून तथा 14 जून को आयोजित कार्यक्रम के बारे में आयोजन समिति के वरिष्ठ दिग्गज विद्वत हस्तियों ने विस्तारित जानकारी प्रदान किया। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में संस्थान के धार्मिक कार्यक्रम को लेकर लोगों में खुशी की माहौल बनी हुई है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के बारे में संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी प्रदान किया और तो देश के काशी, वृंदावन और कई और क्षेत्र से आए महान मनीषियों ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। श्रद्धालु सब बड़े ही अच्छे ढंग से सहयोग कर रहे हैं और यहाँ पर आज कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। शाम को विद्यारंभ संस्कार है बच्चों का, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, लगभग सैकड़ों की संख्या में उनका विद्यारंभ संस्कार होगा और पुनः यहाँ भागवत कथा का शुभारंभ होगा और कल सुबह में यज्ञ होगा, जो यज्ञ 9 कुंड का यज्ञ होगा। इसमें सैकड़ों भाई एक शिफ्ट में बैठेंगे और ये कई प्रकार के संस्कार भी, अन्नप्राशन, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार आदि जो अपने सनातन धर्म में संस्कार हैं, वे सभी संस्कार संपन्न कराए जाएंगे और सभी प्रकार के जो आयोजन है ये पूरा निःशुल्क है। किसी से कोई चीज़ इसमें शुल्क की डिमांड नहीं की जाती है और भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। तो आसपास के भक्तों से निवेदन है कि आप लोग भी आइए और इस कार्यक्रम में शामिल होइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए, उनकी बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए यज्ञ की पूर्णाहुति में एक एक बुराई डालने की बात यहाँ पर होती है और बहुत ही अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम संपन्न होगा। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप भी जरूर शामिल। एक भव्य माहौल है और उत्तर पूर्वांचल में इतनी सुंदर माहौल में माता गायत्री की 9 दिवसीय कुंडीय यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बहुत ही हर्ष का माहौल है। यहाँ पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे भक्त प्राण लोगों से जो आज यहाँ पर मौजूद हैं और जो बराक घाटी के लोग जो आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके प्रति आपका क्या आह्वान रहेगा? सभी भाई बहनों को हमारा सादर प्रणाम। ये कार्यक्रम शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और माता भगवती देवी शर्मा जी के शुभ संरक्षण में, चूँकि माता जी का 100 साल पूरा हो रहा है और हमारे अखंड दीप प्रज्वलन का भी 100 वर्ष पूरा हो रहा है, इसी विषय को लेकर के यहाँ पर बर्तल में, जो जिला कछार असम में स्थित है, 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ और भागवत कथा का आयोजन हुआ है। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिला है कि युवा वर्ग नशे की आदत में पड़े हैं और इसके चलते परिवार में काफ़ी परेशानी होती है। गायत्री यज्ञ एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पर खुद की आत्मसूचना या आत्म बलिदानी की जो धार्मिक तत्वों की आधार है, उस पर एक भावनात्मक आधार पैदा होता है गायत्री माता के संस्पर्श में आने से या फिर नारायण यज्ञ की। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो बच्चे आज मोबाइल में व्यस्त हैं, अध्ययन में काफ़ी कमज़ोर हैं या फिर नशे से पीड़ित हैं, उनकी मानसिकता की दौर जो है, दौर पर कोई प्रभाव पड़ सकती है आध्यात्मिकता के आधार पर? जी, इस विषय में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, वे मात्र 4 क्लास तक पढ़े थे, लेकिन उन्होंने 3200 किताबें लिखी हैं और वैसी किताबें हैं जो छात्रों को पढ़ने के लिए, बड़े बड़े पॉलिटिशियन को पढ़ने के लिए, जज को पढ़ने के लिए, जो बड़े बड़े तबके के हैं और जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निदान के लिए लिखा गया है। तो हम जो छात्र वर्ग होता है उनको मोटिवेट करते हैं स्पिरिचुअल वे पर चलने के लिए, ताकि वे बच्चे हमारे सनातन धर्म का अवलोकन कर सकें, उस पर चलें और उनका जीवन सफल बनाएं। जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जैसे अब्दुल कलाम हुए, हमारे भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, उन्होंने इसी पैटर्न पर चला है और उसी को एग्जाम्पल देकर के बच्चों को भी प्रेरित किया जाता है, ताकि बच्चे हमारे उसी रास्ते पर चलें और वे भी जीवन को सफल बना सकें। तो हम सब इसी मंत्र पर चलते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं, तो लोग भी चलते हैं। आपका शुभ नाम? हमारा नाम गिरधारी मिश्रा हुआ और हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट जोन का उपजोन कार्यालय है सिलचर में, वहाँ हमारा कार्यालय है और वहाँ से हम ये आपका 4 स्टेट है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है। ये 4 स्टेट को यहाँ से जगह जगह पर जा कर के आयोजन को किया जाता है और साथ में शाम के 6 जिला है, इसमें करीमगंज है, आपका श्रीभूमि जिसको कहते हैं, और कछार है, हैलाकांदी है, इसके बाद में हाफलंग है। इस तरह से सभी जगह हम लोग ये प्रचार प्रसार करते हैं। धन्यवाद। ये विचार क्रांति अभियान के तहत ये कार्यक्रम हमारा चलता है, गायत्री परिवार चलाता है विचार क्रांति, इसलिए कि जब तक विचारों में क्रांति नहीं होगी
तब तक लोगों में सुधार नहीं होगा। ज़बरदस्ती किसी का सुधार नहीं किया जा सकता, इसलिए विचार बदलने के लिए गायत्री परिवार अपना कार्यक्रम चलाता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सच्चिदानंद सिंह। हम लोग ये गायत्री परिवार में जुड़े हैं। हम श्रीभूमि जिला से है। गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से आए थे। वो लोग प्रोग्राम कर रहे थे, उसी समय हम लोग आकर के यहाँ पर जुड़े हैं। और हम देखें जो गायत्री परिवार जो पूजा पाठ और जो सत्य रास्ता पर चलने के लिए बोल रहे हैं, तो इससे अब बड़ा तो कोई धर्म ही नहीं हो सकता। इसीलिए हम इसमें भी जुड़े हैं और आज करीब 5 साल हो गए गायत्री परिवार के साथ में हम जुड़े। धन्यवाद। शांति कुंज हरिद्वार उत्तराखंड से 5 कार्यक्रम लेकर आपके पास आए हैं। वायुमंडल शोधन, वातावरण प्रशोधन, महाविनाश बचाव और नवयुग का निर्माण, देव मानवों का जोड़ना हमारा प्रथम कर्तव्य मानता है। और राष्ट्र समर्थ सशक्त बने, ये हम पूरा चीज़ संकल्पित हैं कि हमारा राष्ट्र में जो युवा शक्ति है, जो रीढ़ है हमारे देश की, ये व्यसन से बचाएं और सीजन में लगाएं अपने बच्चों को निर्माण, अपने राष्ट्र के निर्माण में। और इसके लिए हम लोगों ने, हमारे गुरुदेव ने, जो वेद मूर्ति तपोनी श्री राम शर्माचार्य जी हैं, इन्होंने गायत्री जो सद्बुद्धि की देवी हैं, सत्तर के देवता यज्ञ हैं और जीवन जीने की कला संस्कार हैं, अगर ये अपना लिया जाए और हमारा नारा है हम बदलेंगे जो बदलेगा और हम सुधरेंगे जो सुधरेगा, ये नारा नहीं है, एक हमारा महामंत्र है। अगर देश के हर व्यक्ति अगर इसको अपना ले तो हमारा देश अच्छा बन सकता है, समर्थ बन सकता है और हम सभी अच्छे बन सकते हैं। यही कामना लेकर हम हरिद्वार से अब तक पहुँचे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जुड़े। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनील कुमार श्रीवास्तव है और मैं केंद्रीय प्रतिनिधि बनकर इस यज्ञ में भागीरथ कथा करने के लिए आया हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्थापित हुआ का उद्देश्य है मानव में दिवस पैदा। धन्यवाद। समाचारों में एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক नाम। समाचारों के अगले चरण में तापांग मंडल के अंतर्गत चेंगकुड़ी गांव पंचायत के अधीन पश्चिम कचुदरम क्षेत्र के श्री श्री भुवनेश्वर साधु ठाकुर मंदिर प्रांगण में बोरखला के विधायक किशन नाथ को भावभीनी संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। बोरखला समष्टि के विधायक किशन नाथ को बड़े पैमाने पर मतदान के जरिए लोगों ने चयन किया है और इसी के अवसर पर उन्हें एक बार नजदीक में पाकर संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। विधायक किशोर नाथ ने इलाके के हर प्रकार के उन्नयन की धारा बरकरार रखे जाने का आश्वासन भी दिया। इधर इस दिन पिछले कई वर्षों से उपासना स्थल तथा असम दर्शन के अधीन प्रकल्प के आधार पर 10 मंदिर परिचालना कमेटी के हाथों 1,50,000 रुपए की आर्थिक अनुदान भी प्रदान किया गया। गौरतलब है कि 12 साल के शासन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा की उन्नयनमूलक गतिविधि तथा जनकल्याणमूलक कार्यकर्ताओं को सामने रख लोगों में काफी खुशी की माहौल बनी हुई है और लोग भाजपा सरकार पर अपनी आस्था भी जमा रहे हैं। भारत माता की विधायक श्री
অল্প পরে সমস্যা, যতদিন জীবন আছে সমস্যা থাকবে, সমস্যা শেষ হবে না। আমি যতদিন জীবন আছে সমস্যা থাকবে। হলে মানুষ চলাচলের অবস্থা নেই, কোন জনসাধারণ যদি আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। রেসিপ্রোকাল সবাইকে উত্তরীয় দিয়ে বরণ করার জন্য অনুরোধ করছি। রাজু সিনহা মহাশয়কে। সবাই আপনারা উপস্থিত সব মাতা বোনদেরকে জানাই অসুবিধা করতেছি আপনাদেরকে। সংবর্ধনা চলছে, তার মধ্যে আমার মনে একটু কিছু হচ্ছিল। আমি চাইছি কি আজকে এই সভায়, সংবর্ধনা সভায় মায়েরা, বোনেরা, দিদিরা সবাই নিচে বসেছে, আর আমি চাইছি আপনাদের সঙ্গে আমিও নিচে বসবো। তাই চাইছি এখানে সবাই যারা রয়েছেন, আপনারা যারা এটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন, আপনাদেরকে অনুরোধ করছি চেয়ার টেবিলটা সরিয়ে দিন। আমরা যারা রয়েছি আমরা সবাই নিচে বসবো। কি বলেন আপনারা? ঠিক আছে। देश के जाने माने वरिष्ठ हस्तियों के साथ साथ बाराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में शिलचर के बंग भवन में साउथ असम फिल्म फेस्टिवल का ऑनलाइन तौर पर उद्घाटन किया गया। इस उत्सव को लेकर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। इस उत्सव में कई चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे, कई जाने माने लोगों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। और तो और उत्तर पूर्वांचल में पहली बार ऐसे कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाने पर लोगों में काफी खुशी की माहौल है। অসংখ্য ধন্যবাদ। এবারে আমরা ডক্টর বাবুল রায় মহাশয়কে বরণ করে নেব। আমি অনুরোধ করব শ্রীমতী লিপি চন্দ্র এবং মৌটুসী পাল মহাশয়কে একটু এগিয়ে আসার জন্য এবং ডক্টর বাবুল রায় মহাশয়কে বরণ করে নেওয়ার জন্য। জয়ব্রত দাস, বিশিষ্ট অভিনেতা সঙ্গীত শিল্পী সাহেব চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট অভিনেত্রী দেবলীনা দত্ত মহাশয়া, বিশিষ্ট অভিনেত্রী শ্রীমতী কাঞ্চনা মৈত্র এবং সাথে ক্লাব ইচ্ছাধারার সকল সদস্যরা। এবারে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আমাদের দুদিনব্যাপী এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের আমরা শুভারম্ভ করতে যাচ্ছি। একটু জোরে করতালি চাইব আপনাদের পক্ষে এই শুভারম্ভে আপনাদের সবার সহযোগিতা এবং আমরা আপনাদের উপস্থিতি চেয়ে দিচ্ছি। আমরা বরণ করে নিচ্ছি শ্রীমতী দেবলীনা দত্ত মহাশয়াকে, বিশিষ্ট অভিনেত্রী। বরণ করছি ক্লাব ইচ্ছাধারার পক্ষ থেকে শ্রীমতী শম্পা সাহারায় এবং অসংখ্য ধন্যবাদ শ্রী বাবুল রায় মহাশয়। এবারে আমরা বরণ করে নেব শ্রীমতী পারমিতা মুন্সি। আমরা এবারে বরণ করে নিলাম শ্রীমতী কাঞ্চন। এবারে আমি দিদি রয়েছেন, জয়ব্রত দাস রয়েছেন, দেবলীনা দত্ত ও কাঞ্চনা বৌদ্ধ দুজন তারকা রয়েছেন। শিলচর তথা বরাক উপত্যকা সহ আজকে এই গৃহে আমরা যারা উপস্থিত আছি সকলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এখানে আসার জন্য। আপনাদের সকলকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আপনাদের উপস্থিতিতে আমি আশা রাখছি আজকের এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটা একটা সুন্দর রূপ নেবে। একটা বন্ধু বান্ধবীরা
আদ্দামা প্রোডাকশনের সকল বন্ধুবান্ধবীরা, ওই সভাগৃহে উপস্থিত শ্রদ্ধার প্রত্যেক জনসাধারণ দর্শকরা, সকলকেই আমরা এই 4th সাউথ আসাম ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের পক্ষ থেকে, আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে সকলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আমি শর্মিষ্ঠাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে সাহসিকতার সহিত সে এই কাজটি শুরু করেছিল, তার আজকে 4th বছর। এটা একটা অসাধারণ সাহস। আমরা সবসময় নিয়ারেস্ট যদি দেখি তাহলে গুয়াহাটি বা পশ্চিমবঙ্গ, তার বাইরে আমরা কোনোদিন কল্পনাও করিনি যে सिलचर के बार लाइब्रेरी में इस बार भी चुनाव कार्यक्रम आयोजित किया गया। बार काउंसिल के चुनाव कार्यक्रम में कई उम्मीदवारों ने अपना तकदीर आजमाने का कोशिश किया, तत्पश्चात लोगों ने मतदान भी किए। गौरतलब है कि हर एक क्षेत्र के संस्थान कार्यकर्ता तथा वकीलों ने अपने अपने मतों का बखान किया और तो इस क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया संपन्न कर शांतिपूर्ण ढंग से नई कमेटी का भी गठन किया गया। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में बार एसोसिएशन का चुनावी कार्यक्रम संपन्न किया गया। पिछले दिनों सिलचर के गांधी भवन में एनके आर्ट स्टूडियो के कार्यकर्ताओं के उद्योग से
श्रीमान सुंदर श्रीमती सुंदरी कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही एसोए वैशाख कार्यक्रम को सामने रखकर भी कई कार्यक्रम पेश किए गए। विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्मतिथि के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया और कई क्षेत्र के लोगों ने भाग लेकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। কোনো অনুষ্ঠান মানে সম্পূর্ণ রূপ তখনই পায় যখন আমরা কোনো রবীন্দ্রসঙ্গীত বা রবীন্দ্র গানের উপর নাচ দেখি। তো এতক্ষণ যেটা ছিল না সেটা আমরা পরিপূর্ণ হলো আপনার গান দিয়ে আমরা একক রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলাম। সংসারের খেলা সুখে দুঃখে ঘরে ঘরে বহিযাবে বেলা সে কথা স্মরণ করি নিখিলের বাণে আমি আজ চেয়ে আছি উৎসুক নয়নে যা কিছু ফেরি চোখে কিছু কিচ্ছু নয় সকলই দুর্লভ বলে আজি মনে হয় দুর্লভ এ ধরনের শ্রেষ্ঠতম স্থান দুর্লভ এ জগতে ব্যর্থতম প্রাণ যা পেয়েছি তাও থাক যা চেয়েছি তাও তুচ্ছ বলে যা চাইনি তাই মরে দাও। নমস্কার। আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ডক্টর কস্তুরী ভোগ চৌধুরী মহাশয়ের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। शिलचर स्पोर्टिंग क्लब के 90 साल पूर्ति के अवसर पर वर्ष व्यापी आयोजित की जा रही है कई कार्यक्रम। पत्रकार सम्मेलन के जरिए दिया विस्तारित जानकारी। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के वरथल चाय बागान क्षेत्र के जगन्नाथबाड़ी इलाके में आयोजित हो रही है 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ व भागवत पाठ कार्यक्रम। 12 जून से 14 जून तक चलेगी धार्मिक कार्यक्रम। तापांग मंडल के अंतर्गत चेनकुड़ी गांव पंचायत के अधीन पश्चिम कचुदरम से श्री भुवनेश्वर साधु ठाकुर मंदिर प्रांगण में विधायक किशन नाथ को दिया गया संबर्धना। उन्नयन व प्रगति की धारा बरकरार रखे जाने का किया गया अपील। शिलचर के बंग भवन में शुरू हुआ साउथ असम फिल्म फेस्टिवल। संबर्धना सभा तथा कई और कार्यक्रम के जरिए लोगों में देखी गई हलचल। शिलचर के कछार जिला बार एसोसिएशन के कार्यालय में आयोजित हुआ चुनाव कार्यक्रम। विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की देखी गई चहल पहल। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रूप से हुआ संपन्न। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।